Retake. Good afternoon, everyone. Respected Principal Ma'am, Chairman Sir, Vipin Sir. I think you all are well aware of Vipin Sir. He has been visited us and shared his words of wisdom a lot of time with you guys. So he's here and he's here to guide you how to attempt your CBSE examinations, how to manage your stress during these examination sessions. And I'll request all the students to feel comfortable and ask as many questions. Whatever questions comes to your mind, you can have a complete free session along with the sir. Thank you sir, for sparing your precious time with us, and welcome to Green Apple Public School. Thank you. Sir, you have to say something. Okay. A very good afternoon, all. And today's session is totally focused on how to score, how to do self study, and how to excel in board exams and school exams. The aim and objective is very focused, right? I have got some FAQs with me, frequently asked questions many a times by the students. My workshops are mostly in a very jovial way. I always make you to, smile and laugh, and then I conduct the workshops. Okay, that will be there, but the question is that we have to be extremely focused today, totally focused today, exclusively for topic stress. So first of all, what kind of stress you experience? What I have been asked by a lot of students in the past, that sir, exam phobia is there, we are not able to study once we go home. So far we are inside the school, we are very okay because environment is there, but once I am all alone at home and sitting all alone, so I feel that I am not going to perform. So that kind of feelings generally strikes. How many people experience that? You have to be very honest. This session is going to be for the, we have three things: hard work, honesty, and transparency. Speak with me. Never, मरी सी आवाज में नहीं है, अब खुशी से बैठे हो ना. Never hide anything from teachers. आज तो मैं यही बोलूंगा, right? So Otherwise, doctors and mother and your CA. yes, CA will tell a lot of other points. I request Honorable Ma'am to be with us for 1 or 2 minutes, please. Ma'am, please be in the frame, and I request Sir also. Good morning or it's afternoon. Good afternoon, everyone. How are you all? Fine. Fine? Yes, ma'am. Happy also, no? Yes, ma'am. Right. So, today we want that you should be free to ask sir about your stress level and about self-study. And one more thing was there. Scoring Right, and how you will write effectively in the exams. Stress level 1, number 2, self study, number 3, Writing practice writing practice, that you need and focused. focus. Okay. 9th class you have to be okay. 10th definitely they'll focus, but for 9th also. And as sir said, don't hide anything. Okay. If you have some fear in your mind, in your thoughts, then please feel free to ask. And rest. Well, green apple is in my hemoglobin. Yeah. Okay, it's my family, right? So I want that I should be totally
in a proper way my experience, my total academic, experience as a resource person, experience as a teacher, experience. You must get the benefit out of that. Otherwise, workshops is a formality that we have conducted. That is why I haven't come with any PPT and all. So you will be all involved and you'll ask any question. Don't worry, it's being recorded. You will tell me, I will edit that, right? But why we record, there are three reasons. One reason is that it is a memory for the lifetime. When you will be 90-year-old, telling your grandchildren that this is what I was looking like. Number two, I have a very sweet memory. I have one batch 2003-2005, right? I've got first consecutive 9 ranks in India. And when I used to tell the people, how it is possible, how it is possible. Suddenly, during the Diwali day, I found that VCR cassettes where we have the function. So I converted that VCR into a digital one that is uploaded on the YouTube. You can see those students. We have got 37 selections, medical and engineering, AIIMS first rank in India. Okay, engineering first rank in India. And consecutive 1 to 9, out of 10, 1 to 9 were my students in India. So that is there on the YouTube. So those people are now big guns. Some are IAS, some are IPS. One is Manish Gupta, who is a scientist in ISRO. Day before yesterday, successful docking takes place. Okay. Now India is the 4th country in the world that we people have docking means in space, one spacecraft is connected with another spacecraft. Okay. For example, one spacecraft is already there. Now, suppose in that spacecraft people are there. Okay, me and like 2-3 people are astronauts or there, astronaut. Now, sir and ma'am wants to join us. So they will be launched from space station. So they will come into the orbit. So their spacecraft and our spacecraft will be combined together. Now they will say, hi, how are you? Fine. Kaisa laga aapko? So that space station is kind of a place where anybody can come after 2 years, 1 year and get. Otherwise, though, it's difficult. Once the spacecraft is orbiting, it's going on. उड़ रहा है तो वो चल रहा है. उसमें कोई ना जाएगा ना आएगा. नीचे लैंड करेगा बस. But we are the 4th country in the world. Don't you applaud it? And one of the scientists is Manish Gupta, is my student. Again, please. When Chandrayaan got success, he was also the part of that team. You can, one day I will make him to visit. Once he comes to Patiala, we will come and have discussions with you. तो बहुत कुछ पूछ सकते हैं. मैं आई एम नॉट अगेंस्ट पीपीटी एंड ऑल, बट मैं ये चाहता हूं कि आप लोग खुद से चल के आए. कोई बॉदर तो नहीं करता इस चीज को ना. चंडीगढ़ We'll not stay here. We'll move out and then you can ask. You are free to ask anything, right? but We'll not bother them. Yeah, definitely. According to But your. Yes. But according to me, had I got a rebirth, I would love to be the student of Green Apple under the dynamic principle. And so, sir is so disciplined. He never says, he just expresses and person understand कि ये क्या कह रहे हैं. So love you, sir. So may your school rise like anything and belated but happy New Year and happy Lodi and happy Makar Sankranti, right? So will I start? Yeah, Should sir, I start? please. Yes. Thank you. God bless you. Big round of applause for sir and ma'am. Okay. So dear students, the first topic is stress. So we'll talk about the stress and thank you, sir.
Uh, before we go for stress, I would like to just सुनिए मेरी बात एक. If you go to any ready-made shop, you can buy a sweater, but one sweater is knitted by your grandmother or mother, which is more close to heart, which is knitted by the parents, है ना? That is not ready-made. That is specially made for you. Same as the case of workshop. If I come here with ready-made material and if I play it, that you can see on the YouTube, you can see on the so many internet platforms, that is not our material. So I want to knit the sweater for you here. Means we have got 1 hour and 15 minutes left. So 75 minutes. So voluntarily who will come and explain what kind of stress generally one experiences. You just come. Yes, yes. And you too. Both of you. Jaldi se. And you three. Chartered accountant sir. Very good. Take this mic. ये आपने वन बाय वन इंट्रोड्यूस करना पहले अपने आप को जल्दी से क्विक. I'm Anuradha Sharma and I'm from grade 10th. Okay, grade 10th. Okay, next. I'm Saishri Sood from grade 9. Wow, 9th. Then next. No problem, it happens here. Come. I'm Raman Bindal from grade 10. So there are 2 students from grade 10th and there are 2-3 students from grade 1 student from grade 9. I wish that 1 student from grade 9 should also join. कोई और आएगा 9th से उठ के जल्दी से voluntarily. Would you like to come? Yes, please come. Yes, come. Yes, ma'am. Please push. Yes, come. You have to be very much with this green light. Yes, Good afternoon, everyone. Myself Shivanshu. I'm in grade 9th. 9th. Now, first of all, we'll give the preference to the outgoing class 10th. So, what kind of stress you feel, you experience? You should be all having questions in your mind. For example, if I am calling someone, so he starts thinking. But you have got enough time now. So you can write down your question, which you will ask me. I repeat, ask me as many questions as you can ask. If I know the answer, I will. If I don't know the answer, I said I don't know. I'll ask you all and teachers all. If they don't answer, then I will say, मुझे मजा आ गया. तो हम लोगों ने ऑनेस्टली हर दिल की बात करनी है, राइट? सो स्ट्रेस के ऊपर बात चल रही है एंड मैं टाइम स्ट्रेस को देने जा रहा हूं 20 मिनट्स. तो 20 मिनट स्ट्रेस रिलीज करेंगे और अपनी स्ट्रेस इकट्ठी कर लो. यस, ये मैंने ऐसा क्यों बोला? तेरे को सोचने का टाइम दिया. समझ आया? कंटिन्यू. एक ना फ्रेम में आना है. यहाँ आपको दिखाएंगे कि कैसे करते हैं. यहाँ फ्रेम में आओ सो दैट पता लगे आप पॉपअप होना है. यस प्लीज. It's like there is a too much syllabus. हाँ, We don't know how from where to start or how to start. okay. मतलब you are having a complaint not against syllabus, but you are having a complaint that कि from where to start and how to start. Correct. सही. इसको रब कर देना. Where आज वाला जो वर्कशॉप है ना स्टूडेंट, वो एक मेमोरेबल होना चाहिए विदाउट पीपीटी.
Do you like that I don't use PPT? है ना? Because whatever the PPTs will be there, that is already on the internet, so that you can see at home. But nobody will be able to know what kind of problems you have that you are going to share. So your name is Raman. Raman. Raman ने मुझसे क्वेश्चन पूछा. आप इधर आ जाइए ना यार. रमन ने मुझसे क्वेश्चन पूछा. Be with me here. रमन ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एग्जाम के डेज जैसे जैसे पास आते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता हम कहां से स्टार्ट करें. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. मतलब जैसे जैसे कोई बंदा बहुत भूखा हो और उसको शटर बंद कर दिया और वो हलवाई की दुकान में रह गया. बंदा बहुत भूखा है, शटर बंद हो गया, वो गलती से हलवाई की दुकान में रह गया. अब वहां क्या कुछ नहीं है खाने को, तो अब ये बोलता है मैं किसको खाऊं, पहले किसको खाऊं, है ना? दैट्स अ गुड क्वेश्चन. ऑलराइट, 10th में और कौन है? हाँ, आप का इसका कोई आंसर है इसके क्वेश्चन का? Yes. आओ इधर आओ. When you have to say, you have to stand here. Yes, now you speak. Like, sir, he wants to. Don't look at me. I am the camera. He's saying that he wants to start from. कहाँ से शुरू करूं? Yes, that where he have to start. I think he have to start from that which he already knows, so that he can replace it in his mind. वाह, क्या आंसर है? गुड आंसर. मतलब कि बहुत सारी मिठाइयां हैं, कुछ ऐसी डिशेस हैं जो इसने कभी देखी नहीं, तो पहले ये उससे पेट भर लेगा जो इसको ऑलरेडी पसंद है. ठीक है, उसके बाद ये नई वाली ट्राई करके देखेगा, फिर इसको पता नहीं लगेगा टेस्ट है कि नहीं है ना? चलिए आप आ जाओ मेरे पास. यस 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 यस, तुम भी आ जाओ पंडित जी, जल्दी जल्दी. यस सर. My name is Abhishek. I'm from grade 10th. माय नेम इज. Abhishek. एक तो आपके हर वर्ड में एक स्ट्रेस होना चाहिए. है ही नहीं. ऐसे बोलो, माय नेम इज अभिषेक, ऐसे बोलो. My name is Abhishek. विच क्लास? 10th. व्हाट इज योर क्वेश्चन? है ही नहीं. वेरी गुड. My name is Asitu. I'm from class 10th. व्हाट इज योर क्वेश्चन? Nothing. Very nice. Both of you stand here with me. So where to start? The best way to start is revising the formulae. जितने भी फॉर्मूलाए हैं उसको रिवाइज करना. First 30 minutes you have to do warm up studies. What? If you go to gym, immediately you take a bench press of 60 kilogram, 70 kilogram, you will get injury. Your coach, इसको बंद कर दीजिए दरवाजे. Your coach, बेटा इधर आ जाओ आप. Your coach जो है, he will say पहले warm up करो. होता है ना? Should I be in bilingual, Hindi and English? Okay. तो कोच पहले बोलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेटा वार्म अप करो. विदाउट वार्म अप तुम वर्कआउट नहीं करोगे. तो वर्कआउट इज ए मेन कोर्स, बट वार्म अप इज प्री मेन कोर्स. तो आपने सबसे पहले एक माहौल बनाना है अपने ब्रेन के लिए, दैट आई एम गोइंग टू डू सेल्फ स्टडी नाउ. नाउ इन दैट पॉइंट you will be getting some kind of a momentum to study. But your brain should be debugged from all bugs. Come.
Put a question on the mic. So what is debugged? So what is debugged? Okay. You know, when we people are all alone, then nobody is with us. Then your brain is having numerous, points in your mind. जब आप अकेले होते हो तो आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, एक खुराफात चल रहा होता है, एक पॉजिटिव चीजें चल रही होती हैं, और आपका जो माइंड सेट है वो टाइम एंड अगेन आपको एक्सटर्नल डिस्कशंस, एक्सटर्नल पॉइंट्स, टॉन्ट्स, पीपल जिसको आप सारा दिन मिले हो, वो हॉन्ट करने शुरू कर देते हैं. कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले बैठे हो तो सबसे पहले तो एक नेगेटिविटी पहले आती है. हाँ जी, आप देखो, मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूं. मेरा कंटेंट कोई रेडीमेड नहीं होता, ना ही मैं कहीं इंटरनेट यूट्यूब से चोरी करता हूं. हमारा कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है. 409th वर्कशॉप कर रहा हूं आज मैं, तो 2 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स को मिल चुका हूं, टीचर्स को मिल चुका हूं. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश. Day before yesterday, I have a session in Sonipat with the teachers. Principal said that you will not go, sir. Spare 1 hour. I thought the workshop is not going good. No, sir, you have to take 1 hour session with the students. Now again, the session is requested again. तो it means that अगर आप दिल से बोलते हो तो बच्चे सुनते भी हैं, और यही टीचर्स की, बेस्ट टीचर्स की निशानी भी होती है. तो जब हमारा ब्रेन है ना, जो उसमें बहुत कुछ चलता है. सबसे पहले तो किसी ने कुछ बोला, वो आ गया पॉपअप होके एकदम से. किताब आगे पढ़ी है, आप पढ़ने लगे हो, से लॉज ऑफ मोशन या लाइट पढ़ने लगे हो, या केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स करने लगे हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने लगे हो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो, ax² bx + c. यार आज ना मेरे को उसने अजीब सी बात बोली. जब टीचर पढ़ा रहा था ना, ax² bx + c = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, d = b² - 4ac, discriminant, d is greater than 0, roots are real and unequal, d is equal to 0, roots are real and equal, d is less than 0, roots are imaginary. जो मैं imaginary बोला था ना, उसने मेरे को बड़ी टफ लुक्स दी थी. समझता क्या वो अपने आप को? What he thinks of himself, ठीक है. अब आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो. आपके आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या 9th क्लास वालों, आपके आगे कोई 9th का फंडा पड़ा है. ठीक, क्या है मैथ्स में आपके 9th में? लीनियर इक्वेशन है. हाँ, और सर्कल है, तो x² + y² = r² इक्वेशन ऑफ सर्कल है. डिस्टेंस फार्मूला लगता है उसमें, डिफरेंस ऑफ एब्सिसाई स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर √ इज इक्वल टू r. क्या है यार, उस वक्त टीचर ने मुझे क्या बोला था? तू गधा है, तू फोकस नहीं करता. मेरी तो क्लास में बेइज्जती कर दी, और जिसके ऊपर मेरी लाइन चल रही है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या सोचेगी, कि मैं गधा हूं या मैं गधी हूं. भैया एक चीज बताऊं आपको, कुछ हम लोग कभी राइज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में उन्हीं के वे से काम करना शुरू कर देते हैं, कि तू 90% लिए हैं तो मैं भी 90 लूंगा, क्यों ना मैं 95 लूं. तू ऐसे पढ़ता है तो मैं भी ऐसे पढ़ूंगा, तू इस तरह से शूज पहनता है तो मैं भी ऐसे शूज पहनूंगा, तू ऐसे से करके चलता है मैं भी ऐसे से करके चलूंगा. जब मेरा फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलता आपके साथ, तो मेरा नेचर कहाँ से मिलने वाला है?
वो कॉम्प्रोमाइज है। वो कॉम्प्रोमाइज है कि ठीक है तू जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो ट्रांसपोर्ट में, बंदा साथ में कोई बंदा बैठा है, अच्छा या बुरा, कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हो यार, ठीक है बैठा रहे। और आज की डेट में तो कान में लगाते हैं वो ईयरफोन और उनको यही नहीं पता लगता कि ये बस कहाँ पहुंची या गाड़ी कहाँ पहुंची है, क्या है। कहीं सड़क पे चले होते हैं ईयरफोन लगा के, पीछे कार वाला हॉर्न चल रहा था मस्ती से, और सुन ले भाई, हाँ अच्छा, ओ सॉरी सर, आओ। तो हम लोगों को ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस जो है वो नहीं है। आप लोग जागते हुए सोते हो और थके हुए जाग उठते हो। माइंड जो है जब वो डीप स्लीप में जाता है, तो जब आप बाहर की दुनिया से कट जाते हो तो जाके नींद आती है। अदरवाइज आपके दिमाग के अंदर एक लड़ाई चल रही होती है कि उसने मुझे क्या बोला, उसने मुझे क्या बोला। अगर ये चीजें खत्म हो गई तो घर की कोई ना कोई प्रॉब्लम पॉपअप हो जाती है। पापा का मूड ठीक नहीं है, या मम्मा का मूड ठीक नहीं है, या मेरी ये नीड थी बट पापा नहीं दे पा रहे मेरे को, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ। खुद को जानने की कोशिश करो कि मैं हूं कौन। कभी क्वेश्चन पूछना अपने आप से, मैं हूं कौन। जो बेवकूफ, एक चीज बताता हूं, गधे को नमक, गधे को नमक, कुत्ता जी को देसी घी, मूर्ख को इज्जत कभी हजम नहीं होती। जब कोई ज्ञान की बात होती है ना, ज्ञान और नल का देखा आपने, नल है तो जल है, उसमें कभी कभी पानी नहीं आता, उसमें हवा की आवाज आनी शुरू हो जाती है। जब हवा की आवाज आती है तो पानी नहीं आता, और जब पानी आता तो हवा नहीं आती। हवा है अहम, हवा है अज्ञानता, हवा क्या है? इम्पेशंस। तो जब तक आप अपनी वो हवा नहीं निकालोगे तब तक ज्ञान यानी कि पानी नहीं आएगा। हाउस इट? तो इसके लिए सबसे पहले तो आप पात्र बनना सीखो कि हम कहीं कुत्ता, गधा, सुअर कैटेगरी में तो नहीं है। कुत्ते को देसी घी खिलाओ नहीं खाएगा, सुअर को लजीज पकवान बढ़िया सा नहीं खाएगा, गंदगी में मुंह मारेगा। हम उस कैटेगरी में तो नहीं है कि कोई हमें कुछ समझा रहा है, हम उसका फन करें, मजाक करें। क्या बकवास है यार भाई। मैं तो भाई सीधी सी बात है, जो बंदा ऐसा होता है ना, वो बेसिकली सबसे ज्यादा शातिर होता है। वो अंदर से पढ़ रहा होता है और स्कूल में आके ऐसे बिहेव करेगा कि तुम लोग तो यार क्या कर रहे हो यार, छोड़ो यार, मस्ती करो यार, मैं तो पढ़ता ही नहीं यार। ऐसे लोग जिंदगी में कभी राइज नहीं कर सकते। ईच वन टीच वन। अब जैसे एग्जाम का टाइम आ रहा है तो एक टीम स्पिरिट होती है ना। वो टीम स्पिरिट नहीं है अगर, तो आप कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर पाओगे एग्जाम्स के अंदर। तो वेयर टू स्टार्ट? कोई टॉस नहीं करनी, कुछ सोचना नहीं है। अच्छा काम कहीं से भी शुरू कर लो, वो अच्छा होता है। बट 30 मिनट्स, चलो मैं आपकी बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं, तो मैं एज ए स्टूडेंट क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं रिवाइज करूंगा। क्या? a प्लस बी क्यूब, ए क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब ए प्लस बी टू 4, a टू 4, 4a क्यूब बी 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3ab 4, a टू a प्लस b टू 4। जस्ट रिमेंबर 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1, 1 नीचे उतारा a टू 4 प्लस 4a क्यूब b, फिर 6 उतारा 6a स्क्वायर b, फिर 4 उतारा 4ab क्यूब प्लस b टू 4। उसके बाद साइन 30, बोलो 1/2, cos 30 √3/2, sin 60 √3/2,
cos 60 1/2. इस तरह से कॉम्बिनेशन बना लिए. Am I right? m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, midsection formula. If x1 approaches to x2, then m1 plus m2 upon 2. Am I right? m1 is equal to m2, then it is x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, midsection formula आ गया, right? Otherwise section formula आ गया, correct? Sum of in terms of AP n by 2 E plus L or 2A plus n minus 1 into D. What is geometric progression where common ratio is same? Reciprocal of AP is called harmonic progression. If capital A, small a, capital A and B are in AP, then capital A is arithmetic mean A plus B upon 2. If common difference is same, then it is AP. If common difference is not same, it's not an AP. Geometric progression, the common ratio is same. करते करते CnH2n plus 2 alkane, CnH2n plus 1 alkyl, ROH alcohol, ROR ether, RCHO aldehyde. I'm shifting to chemistry. I was talking about maths. Immediately I shifted to chemistry. Okay, right? Then what is atomic number, what is molecular weight, what is atomic mass, that I am discussing karte karte I moved into the physics. Newton's law of gravitation states that F is equal to g mm by r square. G is 6.7 10 to minus 11 Newton meter square per kilogram square and so on. मैं पूरा बोलता रहूँगा, 2 दिन ये चलता रहेगा. तो ये 15-20 मिनट मैंने क्या किया, रैंडम किया. क्या किया? आपने पूछा ना वेयर टू स्टार्ट. आई हैवंट स्टार्टेड फ्रॉम नो वेयर. आई जस्ट स्टार्टेड सो दैट मुझे एक फील आए कि यार मेरे को तो बड़ा कुछ आता है. सबसे पहले तो गब्बर किताब से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, खुद गब्बर. तो मैं बहुत सीखता हूं इस तरह की चीजों से. आप सबसे पहले खुद को एनकरेज करो. जब तक आप खुद को, ये लिखा है ना मोटिवेशनल स्पीकर एंड रिसोर्स पर्सन, पहले मैं खुद को मोटिवेट करता हूं यार. जब मैं ही मोटिवेटेड नहीं हूं तो मैं आपको क्या मोटिवेट करूंगा. हाउ इज इट? तो सबसे पहले तो अपने आप को एक स्टार समझो. कभी कभी मैं बहुत महापुरुषों को सुनता हूँ, बोलते मैं व्यास पीठ पे बैठ के ऐसी बात करता हूँ, ऐसी बात करता हूँ, बड़ा अच्छा ज्ञान लगता है. जब आप पढ़ते हो ना तो सबसे पहले तो यू शुड बी ड्रेस्ड अप फॉर योर स्टडी. मैं ये नहीं कहता आप रजाई में बैठ के मत पढ़ो, मैं ये नहीं कहता आप टेबल चेयर पे पढ़ो, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर स्कूल्स में अगर पढ़ाई रजाई में बैठ के ज़्यादा अच्छी होती तो स्कूल में बेंचेस की जरूरत नहीं होती. इसके सभी अपने अपने घर से एक एक रजाई लाओ, उसमें बैठ के पढ़ लो. तो सबसे पहले तो आपका सिटिंग पोस्चर बहुत सही होना चाहिए. 8 घंटे की नींद बड़ी जरूरी है. और मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, जाने कहाँ दिल खो गया. तो ये दिल खो गया, फेफड़े खो गए, किडनी खो गई, इसको अभी आप उस चीज से परे हट जाओ. और पता क्या सोचा करो, वेयर टू स्टार्ट. कि मेरे पापा मेरे ऊपर बहुत एहसान कर रहे हैं. वो मेरे को यूनिफॉर्म लेके दे रहे हैं, वो मेरे को फीस दे रहे हैं, और मुझे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है. हर एक इंसान की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके लिए वो डेडिकेट करता है. तो जनरली मैं अपनी बात करूं तो मैं अपने पेरेंट्स को, जिसमें 60 to 65% मदर को, 40 to 35% पापा को डेडिकेट करता हूं. जब बड़ा हो गया फिर सोचा यार मुझे तो 50-50 ही करना था. मम्मी को ज़्यादा वेटेज दे दिया मैंने, क्योंकि माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी. क्योंकि माँ खाना दे रही है, पापा तो ऑफिस में है.
माई पूछ रही है मेरा बच्चा आ गया, माई चिंता कर रही है तो लेट क्यों हो गया, तेरी बस क्यों लेट होगी। तो कहीं ना कहीं वहां से एक वाइब्रेशंस आती है कि ये मेरी भगवान है, शी इज माई गॉडेस। पापा भी है, पापा आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो पहले तो अपनी स्टडी में कहीं ना कहीं जब हमारा बेईमान होने को मन करे तो थिंक अबाउट योर पेरेंट्स देन टीचर्स। और हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। तो बेटा वेयर टू स्टार्ट, मैं एज ए स्टूडेंट रैंडम रिवीजन करूंगा। जब आधा घंटा निकल गया और मैंने बहुत सारे फार्मूलाई रिवाइज किए, आफ्टर दैट व्हेन आई स्टार्ट स्टडिंग 60 किलोग्राम के 10 रैप्स, 65 के 10 रैप्स, 70 किलोग्राम वेट के 10 रैप्स, 75 के 10 रैप्स, देन कोच बोलेगा कल यही रिपीट करना, इससे ज़्यादा नहीं, मसल पुल हो जाएगा। सेम इज द केस। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? सभी को समझ आया? इफेक्टिव है ये? लगा? देखो मैंने कोई यहाँ पर कोई डाउनलोडेड करके पीपीटी बना के पेन ड्राइव में डाल के यहाँ उसका कोई फायदा नहीं है। तो योर नेम इज रमन। आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश की है और मैं खुद रमन बना हूं, मैं टीचर नहीं बना ना। मैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, खुद स्टूडेंट बनके कि मैं कैसे करूंगा, मैं तो जी ऐसे करूंगा। क्या आपको लग रहा है कि ये इफेक्टिव मेथड? नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? यू हैव क्वेश्चन। जिसने भी क्वेश्चन पूछना है यू हैव टू लुक देयर। So like if we are having our hobbies in मैं यहां in जाता my हूं। case हाँ, in my case when I do study of 2 or I think 1 or 2 hour I take rest. At that time I do painting and all. I do Of paintings. painting. Okay. So of 30 minutes of painting, when I leave that painting and again start my work of studying, then I get distracted from that. I think about my painting rather than I study. So what should I do? वेल मैं क्या करता हूं, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आजकल लेक्चर दे रहा हूं यूट्यूब पे। दोज हु आर विद मी दे कैन सी। तो बीच में मैं चला जाता हूं स्टार मेकर के ऊपर। तो मेरे रूम में एक स्टूडियो बनाया हुआ है मैंने, तो मैं स्टार मेकर पे चला गया। तो उसके बाद मैं सबसे पहले करता क्या हूं, स्टार मेकर पे गया, ट्रैक ढूंढा, ट्रैक पे डाला, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। ट्रैक सुना, उसके बाद मुझे लगा यार अरे नहीं, मैं आपको अपनी बात बताता हूं। वहां से मैं फ्रेश हुआ, मैंने बोले वो काम किया जो मुझे बहुत पसंद है। मुझे कुछ नहीं आता म्यूजिक, लेकिन मैंने ट्रैक रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैंने सुना कि यार इसमें म्यूजिक की वॉइस थोड़ी लाउड है और मेरी वॉइस लो है, तो मैं म्यूजिक को 70 से 60 किया, अपने 40 से 70 से 80 कर दी। फिर मैंने उसको री रिकॉर्ड किया, ट्रैक सुना। उसके बाद मैं बोलता हूँ चलो आज मैं लेक्चर डालता हूँ, लेक्चर किसके ऊपर, ऑप्टिक्स के ऊपर डालता हूँ। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद मैं ऐसे कैमरा के आगे चला गया, हाय स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विपिन शर्मा, हियर इज योर टीचर, आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे रे ऑप्टिक्स, लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन अप टू फ्रेस्नेल डिस्टेंस, बियॉन्ड फ्रेस्नेल डिस्टेंस लाइट बेंड्स, दैट इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन, light follows the geometry, so it is called geometric optics or ray optics. Ray is that which has got a beginning and no end, line has got a no beginning no end, segment has got a beginning and end. ऐसे मैं आधा घंटा लेक्चर रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैं देखता नहीं, सीधा अपलोड ऑन द यूट्यूब। उसके बाद फिर स्टार मेकर पे चला गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर देखूंगा कुछ सॉन्ग सेलेक्ट किया, जीना यहां
मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। फिर वो किया रिकॉर्ड, उसके बाद फिर बच्चों के डाउट्स आ गए, सर मेरी एक प्रॉब्लम है, वी आर स्टैंडिंग 5 मीटर बिफोर मिरर, सर इसको 1 मार्क में कैसे करें। मैंने बोला ले बेटा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, इसको रब कर देना नीचे वाला। सो 1/v प्लस 1/u 1/f। जब हम इसको ऐसे करते हैं तो क्या होगा, डिबग भी कर दे। सो तो व्हाट हैपेंस, क्या होगा, फॉर प्लेन मिरर f इज इक्वल टू इंफिनिटी 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/infinity, u प्लस v अपॉन uv इक्वल टू 0, u प्लस v इक्वल टू 0, u इक्वल टू माइनस v। जितना हम आगे खड़े होंगे उतना ही पीछे इमेज बनेगा। डाला क्वेश्चन, अपलोड कर दिया, ऑनलाइन बच्चों के डाउट्स लिए 1-1.5 घंटा पढ़ाया। फिर मेरे स्टूडियो में कॉल आती है, आना नहीं, मैं झूठ बोलता हूं, मेरी अभी एक और क्लास है, उसमें से मुझे पैसे मिलने हैं जो सबके काम आने हैं। जब ये बोल दो ना ये पैसे मिलने हैं सबके काम आने, कोई बात नहीं, आप 1 घंटा और पढ़ा लो। समझा क्या है? तुमने बोला, मेरा बच्चा इधर आ, तूने बोला कि मुझे डांस या पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो जब मैं पेंटिंग कर रही होती हूं, पेंटिंग करते करते मैं माय डियर चाइल्ड, जब तुम पेंटिंग कर रहे हो तुम्हारा इंटरेस्ट पेंटिंग में बहुत ज्यादा है। शुड आई से Yes, sir. अविरक मैम के फेवरेट होने चाहिए पेंटिंग में, है ना? तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट हमें 2 तरह के फूड चाहिए। एक फूड पापी पेट के लिए, ठीक है, एक फूड माइंड के लिए। जिस काम में दिलचस्पी होती है ना, करने का मन करता है। हाँ तो जिस काम, हाँ इधर आ, ये अब बोला तो मजा आया मेरे को, ये मुझे मालूम था ये बोलेगा। यस, क्या कहना चाहता है, बोल। तो कहना तो कुछ नहीं है। जिस काम में मजा आता है, जैसे 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 खुराफात करने में मजा आता है, तो जो मजा खुराफात में है वो फात में नहीं है, सही बात है, ना खुरा में है। सही बात है। पता है, अब ये बोलता सही बात है, जब ये 90 साल का हो जाएगा, अगर ये आपको कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी मिलते होंगे कि बेटा पढ़ ले यार, हम तो पढ़े नहीं। अब लोग पढ़ के क्या फायदा है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अनपढ़ लोगों के फैक्ट्री में काम करते हैं। गलत। पढ़ाई को हम पैसा कमाने से जोड़ देते हैं, गलत। एजुकेशन, लाला जी, एजुकेशन जो है उससे बंदे की कंडीशनिंग होती है। क्या होती है? उसका माइंड सेट बनता है। एक पढ़ा लिखा बंदा गाड़ी चला रहा है और एकदम से ओवरटेक करके आगे जाके गाड़ी लगा के ये नहीं करेगा सड़क पे। एक मूर्ख आदमी क्या करेगा, ऐसे जाएगा, गोली लाइन तोड़ के आगे जाके फिर खड़ी कर देगा गाड़ी, और हर बंदा उसको मन ही मन में बड़ी गंदी गंदी गालियां दे रहे होते हैं। तो पढ़ने से कंडीशनिंग होती है। मनी अर्निंग का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। मनी अर्निंग करनी है तो पढ़ाई छोड़ के कहीं भी फावड़ी ला लो, पहाड़ी मैगी, मोमोज, आज से ही शुरू कर दो। ये एज है पढ़ने की, तो इसमें आपका मेंटल ग्रोथ होगा, कंडीशनिंग होगी, और आप एक वाइट कॉलर सिस्टम में चले जाओगे। ओके, मैं एक बच्चे की एग्जाम्पल देता हूं। वो बच्चा कहते मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने मार्शल आर्ट्स में जाना है, ये करना है। मैंने कहा ठीक है करो, राइट। साथ साथ मार्शल आर्ट करेगा तो फेल होगा, तो तुम्हारा मार्शल आर्ट हायर लेवल पे नहीं जाएगा, कॉलेज लेवल पे नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं जाएगा। तो मार्शल आर्ट जो तुम्हारी हॉबी है, जिसमें तुम एक्सेल करना चाहते हो, वो ट्रेवल तो एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जाएगा। Am I right? बहुत सारे ऐसे रेसलर हैं जो हलवाई की दुकान पे बर्तन धो रहे हैं। अगर वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आते हैं तो
तो वो स्कूल को रिप्रेजेंट करते, कॉलेज को रिप्रेजेंट करते, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते, वहां से स्टेट, देन नेशनल लेवल, देन ओलंपिक्स। तो बेटा एजुकेशन इज ए टिकट टू राइड योर हॉबी। तो वो मेरे अकॉर्डिंग, अब मैं कई बार ट्रेवल करता हूं, आई वेंट 500 किलोमीटर, वहां 1 घंटा रुका, केम बैक 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाई, उसके बाद आके नहा के लेक्चर अपलोड किया। तो बंदा बोलता है यार तुम थका नहीं? मैं कहना क्योंकि मेरे अंदर वो पैशन है कि मैंने ये करना है। तो सबसे पहले अपने अंदर एक पैशन होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए कि मैंने ये अचीव करना है। हर बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग है। आप कब नहीं पढ़ पाते? जब आप दूसरे को फॉलो करते हो। मेरा एक अपना तरीका पढ़ने का, इसका एक अपना तरीका पढ़ने का, आपका अपना तरीका पढ़ने का, उसको कभी भी चेंज मत करो। आप किसी को फॉलो मत करो। अब खुद से अपना ट्रैक बनाओ कि यार मैंने स्टडी कैसे करनी है। देखो सिलेबस क्या है, सभी के लिए एक सा है, ओके। सभी को क्वेश्चन पेपर एक सा मिलना है, ओके। लेकिन उस क्वेश्चन पेपर की जो अटेम्प्ट है वो सबकी अलग अलग है, हाँ या ना? वो अटेम्प्ट जो सबकी अलग अलग है वो आपको कैरी करके लेके जाएगी कहां जाना है आपने, किस परसेंटेज ग्रुप में जाके आपने लैंड करना है। उसके लिए बेटा आपको अपनी यूएसपी खुद तैयार करनी पड़ेगी। बट एक जनरल स्ट्रैटेजी है जो सभी को फॉलो करनी होती है। क्या? पेपर में लिखना होता है। जनरल स्ट्रैटेजी है जो सभी को फॉलो करनी पड़ती है। रे डायग्राम बनाना पड़ता है, फिगर बनानी पड़ती है। एक जनरल स्ट्रैटेजी है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। 2 × 2 4, मैं भी बोलूंगा, ये भी बोलेगा, वो भी बोलेगा, तुम भी बोलोगे। हर बंदे के दिमाग में एक जनरल स्ट्रैटेजी चलती है। बट उस जनरल स्ट्रैटेजी से पहले एक पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है। वो पर्सनल स्ट्रैटेजी हर एक की अलग अलग है। अब एक बच्चा बोलता कि सर मैंने उसे पूछा तू कैसे पढ़ता है? कि सर पहले मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता हूं, विष्णु जी के 1000 नाम लेता हूं, फिर मैं जाके पढ़ता हूं। मैंने सोचा यार कितने घंटे पढ़ता है, ये नहीं मैंने पूछा। मैं क्या कैसा रहता है? सर मुझे बड़ा जल्दी याद होता है। तो उसमें बहुत अच्छी वाइब्रेशंस होती होंगी जो ब्रेन जिससे ट्यून होता होगा, और वो ऐसे पढ़ता है। मैं गाना गाता हूं, फिर मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, तो मेरा ब्रेन उससे ट्यून होता होगा। कोई बंदा मम्मा से बात कर लेगा, मम्मा आज मैं स्कूल में बस ऐसे ऐसे था, बड़ा मजा आया, आज बड़ी मस्ती, एक सर आए थे वो ऐसे ऐसे बता रहे थे, अच्छा ये तो पहले भी आए हुए हैं, मैंने देखे हैं, हाँ ठीक है वही सर है, हाँ मैं यूट्यूब पे भी डाल देते हैं वो, अच्छा चलो ठीक है। तू भी बोली कुछ? मम्मा मैं बोलना तो चाह रही थी पर मेरी फ्रेंड ना साथ वाली वो बोलती तू पागल है जाके बोलेगी, तेरे को क्या जरूरत है, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। तू क्यों नहीं बोला? मम्मा मेरे बड़े क्वेश्चन थे, वो सर से कैसे पूछूं? हाँ, सो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक्सक्यूज ढूंढते हैं कि हम चार्ज करें अपने आप को। जब आपकी बैटरी चार्ज है तो एप्स भी सारी चलेंगी, एंड बैटरी फुल तो यू आर ब्यूटीफुल। टेक्स इट। चलो, सो ये हमारे तारा सितारा है, दोनों इकट्ठे आएंगे तो इकट्ठे बैठेंगे। बैठो तारा सितारा दोनों। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जीते रहो। सो योर क्वेश्चन इज दैट कि मैं डांस करती हूं तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं, पेंटिंग तो डिस्ट्रैक्ट होती हूं। मेरे हिसाब से ये तुम उसमें इतना डूब जाते हो बेटा कि तेरा टाइम मैक्सिमम उसमें निकल जाता है, तो सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम नहीं बचता। तो अल्टीमेटली आप सोचते हो कि यार कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, मुझे तो इसी में जाना था। जाइए ना आप, लेकिन पढ़ाई के बिना उसमें भी आप एक्सेल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कुछ लिमिटेड काम करो। अब कड़ी चावल मुझे बड़े पसंद है, लेकिन मैं उतनी खाऊंगा जितने खा सकता हूं, पूरा तो नहीं खत्म करूंगा ना। तो जरूर कीजिए आप
आप पेंटिंग जरूर कीजिए, उसके पेंसिल स्केच करते हो, क्या करते हो? ऑल टाइप्स ऑफ. सो होप विल यू बी एबल टू कंडीशन योर सेल्फ के मैंने थोड़ी देर के लिए ये करना है, फिर ये करना है ना? यस, कम. हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस, कम. यस, यू वांट टू से समथिंग? एनीबडी वांट्स टू से समथिंग? मैम एक्चुअली आप पॉइंट आउट करके बाहर भेज दें प्लीज, प्लीज, प्लीज. है? यस, आ जाइए ना बेटा, जिन्होंने आना है दे शुड बी इन द क्यू. यस. Sir, I would like to ask that whenever I study, it's like when I do study, I forget that during the exam, and when I don't, I score much more than when I've actually studied. So, and I just end up not studying at all. अब इसी को हिंदी में भी बोलो. कि जब मैं पढ़ता हूँ तो फिर एग्ज़ाम जब आता है तो मैं भूल जाता हूँ, जब टेस्ट लिखने का टाइम आता है, और जब मैं नहीं पढ़ता हूँ तब सब कुछ याद रहता है तो वो ज़्यादा अच्छे से जाता है. तो फिर मैं एक्चुअली लास्ट में पढ़ता ही नहीं हूँ कुछ, जिससे मेरा पेपर अच्छा हो. तुम्हारे लिए एक शेर सुनाओ. यस सर. था याद मुझे सब कुछ एग्जाम से पहले, वाह. आ जाएगा याद एग्जाम होने के बाद. देखिए देखिए, ऐसा होता है कि जैसे हमारा ये तारा सितारा बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं. बेटा आप बैठना चाहते हैं? आपको एक बात बोलना चाहता हूं. तुमने वो याद ही क्या किया जो भूल गए? तो तुम, एक क्वेश्चन है मेरा बड़ा सिंपल सा. तुम अपने पापा को पापा बोलते हो, मम्मी को मम्मी बोलते हो. अगर तुम्हारा बर्थ हो के तुम्हारे चाचा जी तुम्हें ले जाते तो तुम चाचा को पापा बोलते, चाची को मम्मी बोलते, और पापा को ताऊ जी बोलते और मम्मी को ताई जी बोलते. अल्टीमेटली जिन्होंने बायोलॉजिकली आपको जन्म दिया है आप उनको भूल गए, और जिन्होंने आपको पाला है वो आपके पेरेंट्स बन गए, तो उनको आप डेली रिवाइज कर रहे थे. तो मेरे साथ बोलो, वाइज, ऑलवेज, रिवाइज. तो बेटा अगर आप रिवीजन के लिए अब देखो ना, इस बच्चे की प्लस पॉइंट क्या है कि इसको सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता था हमारे अंदर कमी क्या है. इसको अपना शॉर्टकमिंग पता है कि मैं भूलता हूं, भूला. ठीक है ना? ये निकला बद्दी से, जाना किसी और जगह था, पहुंच नहीं जाता है. भाई कहां जा रहा है? भूला. अच्छा, तो स्कूल में पढ़ता है कौन से? वो यूनिफॉर्म से बोलेगा ग्रीन एप्पल. हाँ, एप्पल गोल्डन है बट ग्रीन एप्पल. ठीक है. यस, मैं अपने घर जा रहा हूं. अब घर पहुंचा तो बेल बजाई, आंटी जी नमस्ते. बेटा मैं तेरी मम्मी हूं. भूला. सो लॉजिक क्या है? जब हम रिवाइज करेंगे ना तो या फिर गजनी बन जाओ भाई. लिख लो. आपको एक तरीका बताता हूं बहुत सिंपल. तुम्हारा स्टडी रूम अपना है कि नहीं है? बेड है सर. बेड है, वेरी गुड. उस बेड की दीवार भी होगी एक साइड पे, उस पे चार्ट्स बना के जो चीज भूलते हो ना बेटा वो लिख लो. एक दिन सारे बच्चे एक काम करेंगे, एक रजिस्टर लेंगे. क्या लेंगे? उस पे ना बिना कोई भी किताब खोले, साइंस की, मैथ्स की, जो आता वो लिखते जाओ. जो आता वो. बहुत अजीब सी बात बता रहा हूं मैं, शायद पहली बार इस सिस्टम में, शायद पहली बार. एक रजिस्टर ले लो, नोटबुक ले लो, मैथ्स की. मैथ्स के जो फॉर्मूले याद पढ़ते हैं वो लिखो बिना बुक खोले. उसके बाद देखो आपने किस किस टॉपिक के फॉर्मूलाए मिस कर दिए. जो जो फॉर्मूलाए आपने मिस कर दिए ना उसको अलग से लिख लो. अब उसको डेली रिवाइज करो. हाउ इज इट? तो सेम वे you can do it with the other subjects also. Normally बच्चों को 10th लेवल में साइंस एंड मैथ्स ही तंग करते हैं नॉर्मली,
राइट? तो उसको उस लेवल पे हैंडल करो। अब देखो, मैं एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। चंडीगढ़ में एंट्री करते ही आपकी गाड़ी की स्पीड अपने आप 60 पे आ जाती है, उससे भी कम ही रखते हैं ताकि रिस्क ना हो। बेल्ट भी 2-3 बार लगी हो फिर भी चेक करते हैं, ब्लूटूथ भी निकाल देते हैं। क्यों? हमारी चंडीगढ़ की पुलिस बहुत डिसिप्लिन है, कैमरे लगे हुए हैं, तो वो देखती है कि पिंटू पीछे बात कर रहा था, 3 चौक के बाद वो रोकेगी, गाड़ी साइड पे लगा, आप पिछले 3 चौक पहले फोन पे बात कर रहे थे। उसको पता है, क्यों? वायरलेस चला गया, स्पीड आपका घर से वो आ जाता है मैसेज कि आ गया चालान। तो बेटा वहां जब जाते हैं तो हमें सब कुछ याद रहता है। जैसी चंडीगढ़ में पुनः स्वागत है, बाहर निकलते 80 पे पहुंच जाते हैं हम। क्यों? डंडे के पीर हैं हम। हमारे ऊपर वहां चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसिप्लिन किया हुआ है, तो हम डिसिप्लिन्ड हैं। जैसी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर निकलते हैं हम, हमारा वो डिसिप्लिन कहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता है। जो पढ़ा लिखा है उसका तो दिखता है, जो पता है ना आपको। तो लॉजिक इज व्हाट, कि आप लोग सेल्फ डिसिप्लिन हो जाओ यार, खुद से कैसे करना है। अगर वो रूल हर जगह फॉलो करो तो लाइफ में कभी मार ही नहीं खाओगे। गॉट माई पॉइंट? तो क्या कंक्लूजन निकाला? वाइज ऑलवेज रिवाइज, अदरवाइज दे आर नॉट वाइज। समझ आया? नेक्स्ट, थैंक यू सर। आ जाइए, माइक इसको दे दीजिए मेरे पास। चलो पूछो। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जब हम पेपर दे रहे होते हैं यस, तो हम कंसंट्रेट कर नहीं पाते। जैसे कि जब मैं पेपर दे रहा होता हूँ तो मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आता मैं उसको सोचने लग जाता हूँ, लेकिन मैं उसको सोच नहीं पाता हूँ, मैं और क्वेश्चन सोचता हूँ, जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ सर। इससे टाइम भी वेस्ट हो जाता है सर। तो सर इसको कैसे कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन, वंडरफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका नहीं है, बहुत सारे बच्चों का है कि जब मैं पेपर देता हूं, पेपर में मैं सोच नहीं पाता हूं और मेरा माइंडसेट कहीं और चला जाता है और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। बेटा मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग। मेरे स्कूल में, मैं एक बहुत सिंपल स्कूल में पढ़ा हूं लेकिन संस्कारी स्कूल था, तो उसमें सुबह हमसे गायत्री करवाते थे। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और हमारे चंदन का तिलक लगाते थे। मैं ये नहीं कहता कि चंदन का तिलक लगाओ या जो आपका मन करता वो करो, कहीं ना कहीं हमारा पेशेंस लेवल जब वेरी करता है, क्योंकि मैं कभी भी इंटरनेट को बुरा नहीं मानता। मैं बोलूंगा, कहीं आके आपको भाषण देके जाएंगे, आप खुद तो मोबाइल में फंसे होते हैं, बेटा तुम इंस्टाग्राम रील देखते हो, तुम ये करते हो। भाई इस उम्र में नहीं देखूंगा तो किस उम्र में देखूंगा? एग्रीड और नॉट? लेकिन कितना देखना है वो मेरा दिमाग मुझे बताएगा, वो मेरी समझ मुझे बताएगी। मैं एलन मस्क की इंटरव्यू पढ़ रहा था, देख रहा था, तो एलन मस्क को पूछा किसी ने कि डू यू यूज मोबाइल? यस आई डू यूज मोबाइल। ही सेड कैन यू गिव मी योर मोबाइल? कहता व्हाट यू विल लुक लाइक टू? कहता नहीं, नथिंग पर्सनल, जस्ट ही टुक द मोबाइल एंड ही फाउंड द एवरेज स्क्रीन टाइम। एलन मस्क एवरेज स्क्रीन टाइम 4 minutes per week, per day, means 30 minutes he just looks in that social media. सोशल मीडिया क्या है? वो डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है? ओके। और एलन मस्क आपको मालूम है क्या है? तो जब भी हम किसी से कुछ इंस्पायर होते हैं तो हम क्या अपने आप को उस जैसा बनना चाहते हैं। अरे उसकी एफर्ट्स तो देखो ना भाई। तो बेटा जब तुम बोलते हो ना मैं पेपर में बैठता हूं, डिस्ट्रैक्ट करता हूं, इसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं जो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कुछ भी करो, अगर तो तुम जिम करते हो, मान लो, तो अगर तुम योगा करते हो तो एक अपने आप को फोकस करके मेडिटेट करना सीखो। मेडिटेशन कोई नहीं सिखा सकता। मेरे को कोई बंदा ले गया मेडिटेशन कैंप में,
बोलते कौन सा रंग दिख रहा है? मैं तो थक गया था, मैं कहा जी जो बोलोगे वो बोलता। कौन सा रंग दिख रहा है? मैं कहा सर कौन सा दिखना चाहिए? लाल। मैं कहा यस सर। मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था, सच कह रहा हूं है। तो एक बार योगा में चला गया, तो मेरा सबसे बेस्ट शवासन था, मैं सो ही गया। कभी कभी क्या होता है, हम ड्राइविंग कर रहे हैं, उसमें मजा आ रहा है, वो मेडिटेशन हो रही है। कभी कभी हम संगीत सुन रहे हैं, तो उसमें मेडिटेशन हो रही है। जब आप म्यूजिक सुनते हो या कुछ भी सुनते हो, तो उसमें एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को सुन रहे हो, तो वो आपकी कंसंट्रेशन है। जैसे हमारे गुरबानी, गुरुद्वारा साहिब में गुरबानी का जब जाप किया जाता है, गुरबानी का उच्चारण किया जाता है, शब्द गायन किया जाता है, तो उसमें जो तबला है उसकी बीट्स हमें कॉन्सेंट्रेट करती है, ठीक है ना? ओके, तो वो क्या है? दैट इज फोकसिंग, तारा से तारा थोड़ी देर के लिए, तो वो हमें फोकस करता है। नहीं तो वो 3-4 कैटेगरीज मैंने बोली है, उसमें से कोई देख लिया करो, नमक एंड ऑल है। सो लॉजिक क्या है? लॉजिक इज दैट कि तुम्हें मेडिटेट करना है, तेरे को कोई नहीं सिखा सकता। तो खुद देख, सबसे बेस्ट चीज क्या है कि तेरे को पता तेरी ये प्रॉब्लम है, उसको पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, कईयों को तो यही नहीं पता उसकी प्रॉब्लम क्या है। पढ़ना नहीं आता, वो याद नहीं होता, कहां से शुरू करूं, वो भूल जाता हूं, है भूल जाता हूं। किसी डॉक्टर के पास चल तो वो अपनी दुकान शुरू कर देगा, बोलता है ये इसके लिए तो आपको टेस्ट करवाने पड़ेंगे। वो 20-25 टेस्ट देख लेगा, कौन सी गाड़ी में आया, महंगी गाड़ी में आया तो टेस्ट भी उतने महंगे। कोई जरूरत नहीं है। पूरी मेडिकल साइंस में 3 चीजें हैं, पैरासिटामोल, एंटीपैराडिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, देन कोई दिन चला सर्जरी। जब हमें कोई ट्रीटमेंट मिलता है, दवाई कम काम करती है, हमारे अंदर की इम्यूनिटी ज्यादा काम करती है। अगर वही नहीं है तो क्या करोगे आप? Am I right? तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है? That driving force in us, that will power in us, वो will power आपको लेके जाती है। एक ड्राइवर है, वो 8 घंटे की गाड़ी चला के आया, उसके बाद उसको फिर ऑर्डर आ गया कि तू चलने चंडीगढ़ दिल्ली, बोलेगा चलते हैं जी। देखो तो सोया तो नहीं है, क्या करूं यार, पैसे चाहिए, बच्चे की फीस भरनी है। तो उसकी नींद भी गई, वो अपने बच्चे के लिए 8 आवर्स की फिर ड्राइव कर रहा है, और चाहे रास्ते में 80 मील वाली, बोलते हैं ड्राइवर वाली चाय पी, तेज पत्ती वाली। क्यों? क्योंकि उसको पता है मैंने अपने बच्चे की फीस भरनी है। तो वो खत्म हो गया सारा थकावट। इसी तरह से मेरे बच्चे, जब तुम बोलते हो ना कि भाई मैं, योर क्वेश्चन इज दैट कि तुम पेपर में फोकस नहीं कर पाते, भैया ऑटोमेटिकली फोकस होगा जब तुम्हारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैंने कुछ करना है। पहली बात तो ये है कि तुम पढ़ रहे हो, तो तुम अपनी स्टडी किसको डेडिकेट करते हो? पकड़ के इसको बोलो। सर डेडिकेट तो क्या, हमें अपने लिए ही पढ़ना होता है सर। बाकी अगर है तो पेरेंट्स के लिए, कि हाँ पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें भी पेरेंट्स के लिए करना है। जैसे वो विराट कोहली है, यस सर, वो सेंचुरी मारता है, यस सर, तो उसके बाद सेंचुरी मार के वो ऐसे करता है, बैट ऐसे करता है अनुष्का की तरफ, तो वो उसको डेडिकेट कर देता है। यस सर। तो तुम अपनी स्टडी किसको डेडिकेट करता है? सर डेडिकेट पेरेंट्स को। भाई ताली बजाओ यार इसकी। मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी कोई ओके, चलो, गुड, वेरी गुड। तो यू डेडिकेट योर स्टडीज टू योर पेरेंट्स। तो बस ठीक है, जब तुम एग्जाम में बैठो, यस सर, एक राय दूं आपको छोटी सी। यस सर। सुनियार के पास जाओ, एक मम्मी का और एक पापा का छोटा सा फोटोग्राफ लेके लॉकेट बनवा लो, गले में डालो, यस सर। नेम फेम भी मिलेगा, प्रोग्रेस भी मिलेगी, और रोज उसको सुबह उठ के नमन करो। आपको पता है हमारे माइथोलॉजी में पूर्वजों को भगवान मानते हैं। पूर्वज कौन है? इमिजिएट, जो इस दुनिया में नहीं है। अब मेरे पेरेंट्स, ना मम्मी ना पापा, तो मेरे लिए वो भगवान है। जो बंदा इस दुनिया में नहीं है और वो हमारा नेक्स्ट है, तो वो सितारा है। तो वो आपको ब्लेसिंग्स देता है, मेटाफिजिक्स बोलती है, वो आपको ब्लेसिंग्स देता है। तो सुबह उठ के पापा के पांव छुओगे तो आपको नेम फेम मिलेगा, और मम्मी के पांव छुओगे, जो तुम बोलते हो ना कि मैं कहां कंफ्यूज हो गया, मैं क्या करूं,
तुम्हें एनर्जी मिलेगी, एंडोर्फिन मिलेगी। एंडोर्फिन एक ऐसा हार्मोन है जिससे फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आती है। ओके, यस सर। कैसा लगा ये पॉइंट? सर अच्छा लगा। आप 40 डेज ये करो, 40 डेज ये करो, उसके बाद मैम पूछना क्या रिजल्ट है। यस मैं तुमको दावे से कहता हूं। और जब आप पढ़ने बैठो, ये मत सोचो कि मैंने तारा सितारा को पीछे छोड़ना है, या मैंने उसको पीछे छोड़ना है, मैंने उसको पीछे छोड़ना है। तुम अपने लिए पढ़ रहे हो भाई, यस सर। तुम अपने लिए परफॉर्म कर रहे हो। हाँ, सभी को नेम फेम अच्छी लगती है, कहीं भी कोई जाए उसको कोई पसंद कर रहा है, लोग लाइक कर रहे हैं। हाय, योर नेम इज शौर्य चंदेल। शौर्य। हाय शौर्य, यू आर अ स्टार। यू नो, हर बंदा चाहता है, हर बंदा चाहता है। कई बंदे सोचते हैं कि मैं ओवर स्मार्ट हूं, जरूरत से ज्यादा चालाक समझ जो बनते हैं वो महामूर्ख होते हैं। याद रखना, द पीपल हु आर ओवर क्लेवर दे आर ब्लडी फूल्स। तो मेरे बच्चे, यस सर। तुम्हारा जो प्रॉब्लम का सलूशन है वो तुम्हारे पास ही है कि तुम्हें अपने आप को मेडिटेट करना है। और तुम वो म्यूजिक से भी कर सकते हो, तुम गीता से भी कर सकते हो, तुम महामृत्युंजय से भी कर सकते हो, तुम मम्मी पापा से भी कर सकते हो, अनुष्का से भी। You got my point? यस सर। तो क्या कंक्लूजन निकाला तूने फिर? सर कंक्लूजन ये है कि हमें अपने ऊपर विश्वास होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे कोई भी काम हो। क्या बात बोल दी इसने। तो आज के बाद हंसो मत यार, ये बात समझने वाली है। ये 80% तो जलने वाले हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, कभी किसी से सजेशन नहीं लेनी चाहिए। कोई आपको अच्छी सजेशन क्यों देगा, वो खुद नहीं फॉलो कर लेगा। अपने आप से बात करो। ये तो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती है, वो तन्हाई यही बात करती है कि शौर्या पेपर में तू यार भूलता तो कैसे ठीक होगा। यार भाई ऐसा है, कई बार क्या होता है, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। यस सर। कभी कभी हमारे सभी के परिवारों में एक गुरुजी होते हैं। कभी तो गुरुजी के पास तेरे को लेके चलती हो, वो गुरुजी बैठे होते हैं, बहुत आदरणीय होते हैं। तो हमारे पंजाब में भी, हरियाणा में भी, इधर भी, बाबा जी मैं थोड़े को अपने काका लेके आई। हाँ की हो गया बाबा जी, पढ़ाई नहीं करता। छो क्यों भाई, तुम पढ़ते नहीं हो? हाँ बोलेगा, तू मुस्कुरा देगा, ऐसे करेगा। अच्छा ठीक है, इधर आओ। दो फुक्के मारे, उसके बाद एक कागज लिया, उस कागज पे एक स्क्वायर बना के, ऐसे अंदर स्क्वायर बना के, उस पे कुछ 1 2 3 4 5 लिख के कटवट किया। ये पकड़, इसके गले में डाल दे, और सुन, वीरवार को धूप दे के शाम को, ओके, और एक केले की जड़ वो डाल दे। अब क्या है, इसके अंदर ये फीलिंग आएगी कि मुझे बाबा जी की ब्लेसिंग है और बाबा जी ने आज तक जो बोला वो हुआ है, तो मैं चक दूंगा। ये क्या है? एंडोर्फिन। मेरे पास एक ब्लू कोट है, एक ग्रे पैंट है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तब से आज भी है। तो जब भी कहीं कोई इंपॉर्टेंट होता है तो मैं उसको जरूर पहन के जाता हूँ। वो अभी भी फिट हूँ, इसको मीन्स मैं अपने आप को फिट भी रखा होगा। नॉट दिस वन, ओके। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। बेटा कभी कभी सुपरस्टिशन भी हमें वर्क करता है। एम आई राइट? यस सर। तो जब भी आप घर से निकलो, कोई बाबा जी इलायची दे देंगे, वो इलायची मुंह में डाला, लौंग मुंह में डाला, खाया, कुछ नहीं होता, पेपर अच्छा हो जाएगा और बाद में बाबा जी का नाम आएगा, तो सब कुछ बाबा जी का ही आशीर्वाद है। बाबा जी कौन है? एंडोर्फिन। बाबा जी कौन है? एंडोर्फिन। ENDORPHIN से हार्मोन। तो हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग आ जाती है। कई बार हम लोग इतने सुपरस्टिशियस होते हैं, पेपर देने निकले, सामने वाली आंटी दिख गई, कहां से, वो ऊपर से बोल दे, आज तेरा पेपर है। हाँ जी, पहले तो सुना तो फेल हुआ था। और ऐसी आंटी क्या होती है, जब पास हुआ हो तो कभी नहीं आती बधाई देने, फेल हो तो पहले आ जाएगी, सुने काके का रिजल्ट आया आज, हाँ मेरे बेटे ने बताया है कि उसके नंबर नहीं है कुछ। मतलब ये छोड़ो,
क्या बोलते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, तो खुद को फॉलो करो भाई। शीशे में खड़े होके बोलो, योर नेम इज शौर्य। शौर्य चंदेल का शौर्य शौर्य है। इसके सामने कोई आ जाए, क्या खेल, जब आ जाए शौर्य चंदेल, जिसका कोई नहीं है मेल। समझ आया? जो लेगा पंगा जाएगा जेल। सुबह उठ के शीशे के आगे खड़े होके बोला करो, आई एम द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट हैंडसम एंड ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, मुझसे ज्यादा बेटर कोई नहीं चक देगा। देन यू कैन राइज इन योर लाइफ। अगर तुम डिप्रेस्ड होके बैठे हो, पिंटू मुझसे ज्यादा अच्छा है, उसके नंबर ज्यादा अच्छे होते, मैं तो धरती पे बोझ हूं, मेरा कुछ नहीं होने वाला, महामृत्युंजय का पाठ करा के भी नहीं कुछ हुआ, हनुमान जी ने भी मेरी हेल्प नहीं की, नया गॉड बदलता हूं अब मैं। अबे छोड़ो भैया, खुद अपनी मदद करोगे, खुद अपने आप को फोकस करोगे, खुद अपने आप को मोटिवेट करोगे, तो तुम्हें अपने आप एक जवाब मिलेगा अंदर से कि तूने क्या करना है। Yes, sir. Have I answered your question? Yes, sir. Without PPT. Next. Thank you, sir. Good afternoon, sir. So my question is that, how I पहले तो सर अपना नाम तो बता दो। My name is Vaibhav Sharma and I'm राहुल, नाम तो सुना होगा। Vaibhav Sharma. वैभव, Yes. वैभव, yes वैभव। Yes, sir. My question is that how I deal with tough levels of questions in exam. Wonderful, Yes, sir. wonderful. How I deal with the tough level of। अच्छा भैया, जिसका क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूं वो बोल के जाना कि मेरे को आंसर मिला, ऐसे नहीं अंदर ही अंदर मन में गले के आपको ऐसे आंसर किया, कुछ नहीं बताया। तो हाउ आई डील विद अ टफ क्वेश्चन। Yes, sir. मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ट्रैफिक जहां बहुत होता है, जैसे हम आपके यहां एंट्री की है, बहुत ट्रैफिक होता है, वहां एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं। Yes, sir. एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं हाईवे के ऊपर, Yes, sir. क्योंकि वहां तो गाड़ी 5-10 पे चलती है, नहीं चलती है, और ध्यान से बंदा आंखें खोल के चला रहा होता है। हाईवे पे बंदा एकदम से उड़ रहा होता है। बेटा, जो टफ क्वेश्चन है उसकी डेफिनेशन क्या है? Sir, tough questions. हाँ, उसकी डेफिनेशन क्या है? मान लो तुम्हें टफ क्वेश्चन आ गया तो उसकी डेफिनेशन क्या Sir, है? first तो sir, अगर there are the two questions. अगर वहाँ पे दो questions है, नहीं? In long question answers you can. एग्जाम्पल दे कोई। Yes, sir. Sir, अगर long question answers है, अगर मेरे को first आता है अच्छे से, I can do it clearly. But second मेरे को आता है, but first के चक्कर में सर मैं second वाला भूल जाता हूँ। तेरा फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है? Sir, cricket. क्रिकेट। Yes, sir. तुम खेल रहे हो, Yes, sir. सामने बॉलर है, Yes, sir. अगर तो पहले से तूने बहुत ज्यादा स्टडी किया हुआ है कि ये बॉलर बड़ा खतरनाक है, सीधा मुंह पे मारता है, Yes, sir. तू अंदर से डरेगा, यार इसकी 2 बॉलें खेलो, ओवर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, है ना? हो गया, थैंक यू, चला आ गया, ठीक। Yes, तो भैया तू ये खेल, अच्छा तू, मैं तेरे को बस तू स्ट्राइक रख, Yes, sir. है ना? तुम भूल जा वो कौन है, तू भूल जा। मुको- तूने ये देख रहा है कि बॉल का टप्पा कहां पड़ रहा है, उसको लाइन को स्टडी कर रहा है, बैट को उस तरफ से उठा रहा है कि ये मिडल स्टंप से ऑफ जा रहा है, तो स्क्वायर कट मारना है, यहां तक मारा, हुक शॉट मारना है, Yes, sir. है ना? और लो लेवल है, स्ट्रेट ड्राइव मारना है, और उधर बड़ा टप्पा डांसिंग डाउन द विकेट शॉट मारना है, और अगर उसने फुल टॉस मारा तो अगर बॉट पे आ गया तो छक्का मारना है ना? मेरे बच्चे, एक टफ क्वेश्चन कोई नहीं होता, एक सिंपल क्वेश्चन भी टफ हो सकता है अगर हमारी प्रिपरेशन फुल नहीं है। तो ये टफ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही यही है, कितना टफ होगा। जो क्वेश्चंस टफ है उसकी लिस्ट बना ले, Yes, sir. उसकी बार बार प्रैक्टिस कर, Yes. एंड क्या गारंटी है कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? एक गारंटी जरूर मैं देता हूं, बोल दो क्या गारंटी? Yes, sir. PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, वो आप रट दो। PYQ 10 इयर्स रट दो, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस आपको 70% आ जाएंगे, और आप करते ही नहीं हो। मेरा काम करने का तरीका कुछ और है।
मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं कि किसी भी हमारे पंजाब हरियाणा में इधर एरिया में पार्टी होती है, वहां वेजिटेरियन पार्टी में पनीर तो मिलेगा ही मिलेगा, दाल मखनी मिलेगी मिलेगी, पापड़ मिलेगा ही मिलेगा, एक अलग से टेंट लगा होता है उसमें उनका प्रोग्राम चल रहा होता है, मिलेगा ही मिलेगा, यस सर, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर के अंदर वही क्वेश्चन ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं जो प्रीवियस ईयर्स आए हैं। सीबीएसई कभी नहीं चाहती कि आपका रिजल्ट डाउन जाए। सीबीएसई इज वेरी लिबरल। सीबीएसई में स्कोर करना बड़ा इजी है। सीबीएसई के अंदर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज ओम्स लॉ, तो आपने लिखना है कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, तो आपने लिख दिया कीपिंग द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट, द फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V इज इक्वल टू आई आर। अब छोड़ के आगे बाद में आपको डराया जाएगा, ओए तेरे को पता है इसको वोल्ट लिखना था, इसको एम्पियर लिखना था, इसको ओम लिखना था, लिखा ना तो गया। सीबीएसई कहती है अगर आपने ये लिखा है ये लिखा है, इसके मार्क्स मिल जाएंगे। यस जितना आप लिखोगे उतने मार्क्स देगी सीबीएसई। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, थोड़ा कम आता है, उसके जितने स्टेप्स आते हैं लिख दो। तो मैं किस में निकल गया, हाउ टू अटेम्प्ट एन एग्जाम, तो उसमें लिख दो। ओके, जब आप उसमें लिखोगे तो आपने एक न्यूमेरिकल स्टार्ट किया, न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट पढ़ा, उसके अंदर फॉर्मूला लिखा, मतलब फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ lens whose an object is placed at a distance of this u and this, तो लिखा focal length of a lens is 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f। अब उसके बाद u v f की वैल्यू डाली और फोकल लेंथ आ रही है 15 सेंटीमीटर, तुम डाला है वही वहां पर 70 सेंटीमीटर। तुम आपको बोलेगा तेरे क्या आंसर है, नेट पे चेक किया वहां है 15 सेंटीमीटर, तुम्हारा आंसर क्या है 70, तो डिप्रेस हो गया। नहीं, सीबीएसई बोलती तूने 1 upon v minus 1 upon u equal to 1 upon f लिखा है, इसके मार्क्स, तूने वहां v u f की वैल्यू डाली, इसके मार्क्स। बेटा गलती हो गई किसमें, कैलकुलेशन में, नो प्रॉब्लम। तो कभी कभी हम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखते हैं, आधा पचद्दा रे डायग्राम बनानी आती है, माइक्रोस्कोप आ गया, कुछ भी आ गया, टेलीस्कोप आ गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, मोटर आ गई, तो उसकी अगर हम डायग्राम ही बना दें, उसको लेवल अप कर दें, उसके मार्क्स मिलेंगे। हाउस इट? यस और आप लोग छोड़ के नहीं आना, क्वेश्चन को छोड़ के। एक क्वेश्चन पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं लिखते। ये रब करो एक मिनट, मैं आपको बताता हूं। मैंने मोर देन 15 इयर्स सीबीएसई के पेपर चेक किए, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। वन लर्न थ्रू वन जोन ऑब्जर्वेशन। जहां सितारा सितारा तुम्हारी शरारत खत्म होती है ना, मेरी वहां से शुरू होती है। आपको एक बात बताता हूं मैं, बच्चे क्या करते हैं, पहले तो लिखेंगे क्वेश्चन पूरा, फिर ऊपर डालेंगे जय राधा स्वामी या कुछ भी। मैं किसी सब फेथ की रिस्पेक्ट करता हूं, नहीं लिखना, क्वेश्चन नहीं लिखना, आपने डालना क्वेश्चन नंबर 11 3 मार्क्स सेक्शन ए। फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर 11 3 मार्क्स सेक्शन ए, अपना जो नंबर है ना, मान लो ये आपका फर्स्ट है, तो अपना साइड पे अलग डालना है। जब मैं पेपर चेक करूंगा तो मैं बोलूंगा ये फर्स्ट क्या है, अच्छा फर्स्ट इसका, ये 11 बोर्ड का, अच्छा ठीक है यार ये और एक क्वेश्चन पेपर में नीट एंड क्लीन रे डायग्राम होनी चाहिए। रे डायग्राम में क्या होता है, एरो,
करंट में भी एरो। कई बच्चे क्या करते हैं, लेंस बनाया, ऐसे 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 कर दिया, 0 मार्क्स। यू हैव टू मेक। अब एक और चीज, ये बच्चे क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप आ गया या कुछ भी आ गया, वो पहले तो लेंस बनाएंगे ऐसे, ठीक है, ओके, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकल लेंथ और इसके बीच में, फिर वो ऐसे, फिर ऐसे, फिर वो बड़ा करके दिखाएंगे, है ना, दिखाएंगे ना। एरोज होने चाहिए, लिखना नहीं है रेस। कई लोग टाइम पास करते हैं, रेस स्टार्ट्स फ्रॉम ए goes to O, then goes to O, beyond O, then this। नहीं, आपने क्या लिखना है, the course of rays are as shown in the ray diagram। बस, the course of rays are as shown in the ray diagram। एग्जामिनर आपकी रे डायग्राम या करंट की डायग्राम को देखेगा, उसमें कहां से करंट करंट तुम लिख रहे हो, टाइम नहीं है, फिर वो कैलकुलेशन सेक्शन देखेगा। यू अंडरस्टैंड? यस सर। हाउ इज इट? कुछ नई चीजें मिल रही हैं? यस सर। ठीक है, और कुछ? हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? यस सर। फुली? फुली सर। शर्मा जी थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज आते जाओ। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, हमारे जैसे बोर्ड एग्जाम को सिर्फ अभी 1 मंथ बचा है, हाँ। सर बोर्ड एग्जाम में हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए? वंडरफुल। सर एक्चुअली मेरे इंग्लिश का 6 मार्क्स का पेपर छूट गया था। वेरी गुड। टाइम सर मैथ्स का मेरे 10 नंबर का क्वेश्चन छूट गया था, टाइम मैनेजमेंट। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अगर वो ना रहता तो तुम्हें अपनी कमी ना पता लगती, यस सर। तो तुम मुझसे ये क्वेश्चन ना पूछते। तो आप थैंक यू बोलो उस वक्त को कि तुम्हारे पेपर में ये चीजें रह गई हैं। योर नेम? शिवानी, क्लास 10th। शिवानी जी, बहुत सिंपल सी बात बताता हूं आपको, रखो अपने पास। एक्चुअली मैं ये नहीं बोलता, मैं भी आप ही का जनरेशन का हूं, मुझे भी जो आप म्यूजिक सुनते हो वही अच्छा लगता है। यस, रैप एंड ऑल आई टू लाइक, है ना भी लगता हो तब भी मैं बोलता हूं अच्छा लगता, नहीं तो आप बोलेंगे आउटडेटेड हो गया। अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। हम लोग किस में ज्यादा एक्टिव है? हाय नहीं, वहां उंगलियां पता कैसे चलती, जादू की तरह। हाय कैसे हो? फाइन, बढ़िया, खाना खाया? हाँ, बस तो मेरा मूड बड़ा खराब है, टक। तेरा कैसे? ठीक है। तू आज आया नहीं स्कूल में, या आई नहीं स्कूल में? आई तो थी, तूने देखा ही नहीं मेरे को आज, तेरे में एटीट्यूड आ गया, टक। अच्छा, तो अभी तक ऑनलाइन है, तू किसके साथ ऑनलाइन बात कर रहा है? नहीं, मैं तो अपनी मम्मा से बात की थी। झूठ बोल रहा है, तो मम्मा तो तेरे घर में रहते, उससे नहीं। उसमें तो तुम्हारी उंगलियां ऐसे से सबकी चलती हैं। और पेपर में भैया वहां लिखना होता है, वहां होता है पेपर में ये पेन और क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट। स्पीड ही नहीं बनती। मैं ये नहीं बोलता तुम ऐसा करते हो, सच बोलना शिवानी जी, क्या आप घर में जाके लिख के देखते हो? नो सर। पंजाबी च कहते तुर आप तो नहीं हुंदा, फिटे मुंह गोडियां नू। मतलब चल हम नहीं सकते, गाली गोडे को, घुटनों को मारते हैं। मेरे बच्चे एक काम करोगे, बुरा तो नहीं मानोगे? नो सर। अभी तो हम लोगों के हाथ की मुट्ठी ऐसे बंद होती है ना, आने वाली 200 साल के बाद हमारे हाथ चिंपैंजी की तरह हो जाएंगे। एक हाथ, उसको बोलो कैसा है तू? बढ़िया, खाना, ऐसे कर लेना। क्यों? इस हाथ में रहता है मोबाइल, और जब मोबाइल हमारे हाथ में ऐसे रहेगा तो उंगलियां ऐसी पोस्चर में आना शुरू हो जाएंगी। हैबिट है राइटिंग, स्पीड बनती है लिखने से, वो हम लिखते नहीं है। अब आपके दिमाग में क्या चला हुआ है? लिख के तो टाइम वेस्ट होता है, हाँ या ना? जब मैं लिख के देखता हूं या देखती हूं तो आधा घंटा लगता है, नहीं तो मैं 15 मिनट में 10 GB को 1 MB
है ना? लेकिन जब 10 GB को 1 MB करोगे तो उसकी क्वालिटी वीडियो की अच्छी होगी? होगी? कहाँ होगी? 10 GB को 1 MB में ले आओगे, पिक्सल टूटेंगे ना? तो फिर मेरे बच्चे, एक तो लिखना शुरू करो आज से ही। तरीका मैं बताता हूं, बोल दो। डेली मेक ए हैबिट ऑफ राइटिंग 3 hours। आप बोलो सर 3 घंटे तो हम पढ़ते ही नहीं है। ऑल्टरनेटली लिख लो। सर ऑल्टरनेटली भी नहीं पढ़ते हैं। 2 घंटे 2 दिन बाद लिख लो। आप क्या करो, PYQ उठाओ और अपने आप को एग्जामिनेशन में फील करो। पेपर कितने बजे होना है आपका? 8:30 होना है बोर्ड का। फाइनल 9 o'clock। तो कई बच्चे क्या होता है कि हम ना सारी रात पढ़ते हैं और हम 12-1 बजे उठते हैं। उसके मम्मा भी बोलते हैं सनी लेट नाइट स्टडी करता है जी। अपने उसके मम्मा उसके पापा को बोल रही है सनी लेट नाइट स्टडी करता है, बट आई लाइक हिम, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैंने कई बार आई हैव सीन थ्रू द विंडोज एंड ऑल दैट ही हैज नो हिडन मोबाइल एंड ऑल। ओके, सनी लेट नाइट स्टडी करता है 3 o'clock एंड ही गेट्स। सनी को उठाओ, नहीं अभी तो 4 बजे तो सोया सनी। Sunny is sleeping, though the day is very sunny. Okay, right? Okay, Sunny is sleeping. Sunny कितने बजे उठा? 12 बजे। अब सनी का जो ब्रेन है शिवानी जी, वो बायोलॉजिकली उसका क्लॉक सेट हो गया कि मैंने 12 बजे उठना है। अब जब वो एग्जाम में जाएगा वो ज़ॉम्बी होगा, नींद में। क्या? और पेपर में उसका स्पीड भी कम होगा, उसका ब्रेन भी कम चलेगा। तो हमारे पूर्वजों ने एक असूल बनाया है, जब किसी का जन्म होता है 40 days उसको कोई बाहर का बंदा देखने ना आए। क्यों? उसकी बच्चे की इम्यूनिटी बन जाए। और हमारे कहते लोग हम नहीं बैम करते, बच्चे छोटे होते हेलो उसको प्यार भी करेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि सारा इन्फेक्शन उसको जाए। तो 40 days में हमारे बॉडी का सिस्टम सेटअप होता है। तो अगर आपने अभी से 9 to 12 अपने ब्रेन को एक्टिव ना रखा तो एग्जाम में आपका पेपर में स्पीड भी स्लो रहेगी और भूलोगे भी, और ये भी नहीं पता लगेगा कहां से शुरू करें कहां। समझ आया? हाउ इज इट? नहीं, जब मैं हाउ इज इट बोलता हूं इसका मतलब क्या है कि आपको ये पॉइंट जच गया ना? समझ आया ना? तो जब नींद ही आती रहेगी, भैया तूने अपनी शादी में बोला ना मेरे को याद रखना। हमारा दोस्त है ये बड़ा पुराना, तो हम भी बात करेंगे अभी थोड़ी देर, हमारा भी क्वेश्चन लेंगे। तो मेरे बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने सोचा हुआ है। इज इट क्लियर? अब मुझे ये बताओ कितने लोगों के पास ये दिमाग में आइडिया था कि हम लोग रात को जब मर्जी पढ़े 9 से 12? कितने बच्चों का ऑनेस्टली हाथ खड़ा करो ये नहीं आइडिया था कि बायोलॉजिकल क्लॉक भी होता है ब्रेन का? अब पहली बार पता लगा? तो ये जो पहली बार पता लगा ना आपको, ये बड़ा जरूरी है और इसको आपने सीरियसली लेना भी है। देखो अगर मैं ना बड़ी हाई फंडे की बातें करूं आपसे, हाई लेवल की बातें करूं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और कोई क्वेश्चन जल्दी से? Good afternoon, sir. हाँ, I am Aditi from grade 10th. I have a question. Should I attempt long question answers first in board exam? नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने बोला नो। सबसे पहले छोटे 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 क्वेश्चंस तैयार करके 1-1, 2-2, 3-3 लाइनों वाले करो। शगन देखो कितना देना है। अगर मिठाई का डब्बा कार्ड के साथ आया तो 1100, 2100, या उन्होंने कितना दिया हुआ पहले उसके हिसाब से, नहीं तो 501 या 251। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में मार्क्स देख के आपने लेंथ बनानी है तारा से तारा, राइट? मार्क्स देख के जुए बाद में निकलना, मार्क्स देख के लेंथ बनानी है। इज इट क्लियर?
अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास 32 क्वेश्चन है, कितने आने हैं? 38 आने हैं। तो अगर आपने बड़े क्वेश्चन पहले शुरू कर दिए, वहां एक टीचर होता है, वो जेलर की तरह लिखता अब द टाइम इज ओवर, मेरे तो अभी 8 ही क्वेश्चन हुए हैं। अगर आपने वो छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो जो बहुत स्कोरिंग होते हैं, वो पहले कर दिए, तो आपके पास बड़े क्वेश्चंस के लिए 1 आवर प्लस बच गया, तो यू विल डू गुड जॉब। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? वैसे तुम्हारा आंसर क्या था इसका? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने चाहिए। नो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का पता नहीं कितनी लेंथ है। अब पता नहीं, मैं गोलगप्पा खा लिया, तक हजम, पता ये टिक्की पड़ी है, खा ली, हजम। अब तुम वहां साग मक्की की रोटी खा रहे हो, इतनी खा गए, गोलगप्पे का भी टाइम मिला। पहले स्टॉल्स को रगड़ो, मीन छोटे छोटे क्वेश्चंस को रगड़ो। साग मक्की की रोटी तो उतनी खानी है जितनी खानी है, वो ज्यादा खाया जाता है। कहने का मतलब ये छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी निपटेंगे ना भैया, तो आपके पास टाइम बच जाएगा। डू यू एग्री मैम? एज ए टीचर डू यू एग्री? कोई बच्चा इससे डिसएग्री करता है? आओ जल्दी आओ। So, as always, I do long questions first because I believe that in maths, only in maths, if we attempt long questions first, लॉन्ग क्वेश्चन कितने नंबर का है? so like start at the starting. नहीं, एट द स्टार्टिंग कितने from B नंबर- section. कितने 5 मार्क्स का है? Yes, sir. और जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो विद इन 3 to 4 मिनट्स में 7 हो जाए। So no. So yes. So फिर- we have to solve one by one. हाँ, So instead of that, we can. तुम एमसीक्यू की बात कर रहे हो? Yes, sir. देखो भाई, एक होते हैं एमसीक्यू, एक होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। ओके, एक एमसीक्यू होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। अगर तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग है, फिर तो एमसीक्यू को पहले कर दो। अगर एमसीक्यू को भी आपने सॉल्व करने में टाइम लगाना है, फिर लॉन्ग आंसर पहले कर दो। So that's why. पंगा क्या है आपका कि आप एमसीक्यू में भी उलझते हो। Yes, sir. Am I right? In literature parts, they are busy in found Please. the synonyms and antonyms from the paragraph, and they waste their time in that. Please tell that, ma'am. Tell them. I already told this. Okay, ठीक है। So, my dear students, if you are having a command over the MCQ, पहले ये देख लो, कई बैट्समैन फास्ट बॉलर को बच्चा खेलते हैं, कहीं स्पिनर को, कहीं दोनों को, तो इट्स अप टू यू। मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। ये लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर का अप टू यू, बट पेपर पूरा होना चाहिए। So like you said, speed limit. So my writing speed is very good. So I complete my whole paper 1 hour. Yes. बढ़िया जी, बढ़िया है, ये तो ताली हो जानी चाहिए। So like wait. So like Shimanshu said that he is unable to revise all that topics that he have done previously. I have a trick for him that once he read whole the chapter, then close the book. After that, you need to write whole the topics what you learn in whatever in the topic. After that, read that notes that you made. After that, make that note as small as you can, so it can be enhanced. Wow, great. So like I do. May I show that? Time is too short. So I can show. Yes, please come. Akhilesh, if you want to ask, then come. So, Students, listen what she says. sir, my mind has a habit that I like to. My mind has a habit that I like to work under stress and pressure, and when I actually have time to spare, I start to procrastinate and delay stuff. Means you play under pressure. She is a wonderful personality. मतलब मुझे तो आप से सीखने को मिलेगा कि जब इसके ऊपर आप दोनों बहनें इधर आ जाओ, बोथ सिस्टर। They are good students, but they have phobia, sir. No, I don't have. She has. बोथ स्टैंड हियर।
तो ये पहले बच्चे हैं देश के जिनके ऊपर बोझ हो तो ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, मतलब प्रेशर हो तो ये अच्छा परफॉर्म करते हैं. यू आर बेस्ट प्लेयर like Yuvraj Singh, like they are the Dhoni of Green Apple Public School. Wonderful. तो इसका मेरा क्वेश्चन है, ऐसा क्यों होता है? सर जब इट्स लाइक अ डू और डाई सिचुएशन इन माय माइंड कि हमें काम करना है, 10 दिन पहले हमें बता दिया है कि ये काम करना है, बट जब टीचर लास्ट डे उसी दिन हम काम करेंगे, उस दिन हम 5 घंटे भी बैठेंगे, पर बाकी के जो 9 दिन है उसमें हम 1 घंटा भी नहीं बैठेंगे. आउटपुट आता है? आउटपुट आता है सर. वंडरफुल. यस सर, आप थैंक यू. और कुछ? But sir, when I actually have time, I start to procrastinate. When you have time, then, well, your mindset is such. Your brain is, set up in such a mode, परमात्मा ने जब आपको बनाया होगा तो उसने बोला होगा कि ये वो बच्चा है जो कभी स्ट्रेस ही नहीं लेता. स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन इसके लिए आता ही नहीं. ये उल्टा काम है कि when she is lethargic, having lot of time, कर लेंगे, हो जाएगा. लेकिन जब पढ़ती है तो फिर ये बहुत अच्छा करते हैं. मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं. जैसे आपका एग्जाम 10 दिन बाद है तो आप एक दिन पहले शुरू करते हो. आप ये सोचो कि अगले दिन ही एग्जाम है तो रोज उसी पैशन से स्टडी करो तो यू विल डू मोर बेटर. क्या बोला? यस. ओके. इससे क्या होगा? आपका परफॉर्मेंस और बेटर हो जाएगा. थैंक यू. यस प्लीज, यू वांट टू शो समथिंग. I made Show here in the camera. I made notes as much as I can short it. Wonderful. So I can revise it easily. एक बार फिर से दिखाओ. सभी बच्चे देखो. What a way she has made shortcuts and tricks. First time in my sessions with the students, I'm seeing this. yes sir. मेरा एक क्वेश्चन है बच्चे, माइक ऊपर रखो. मेरा एक क्वेश्चन है, इसके पीछे किसका आइडिया है? So it's my own idea. तो मेरे साथ बोलो. One learns through one's own observation. own observation. जब तक हम खुद से अपने आप से नहीं सीखते तो नहीं सीखते. इसलिए मैं कहता हूं कि टीचर तो एक कैटलिस्ट है, वो आपको बहुत गाइड कर सकता है, लेकिन आपने खुद से अपने आप को डिजाइन करना है, कंडीशन करना है. एग्जामिनेशन में तो आपने खुद ही परफॉर्म करना है. जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में कर्रा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, हम उसे प्यार करते हैं तो उसका दर्द हमें लगता है, लेकिन असली पेन्स तो उसी को होती है. तो जब आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में आप ही ने परफॉर्म करना है. ईडन गार्डन में लाख की भीड़ है, बैट्समैन के ऊपर बोल रहे हैं, उस बैट्समैन को उसको साइडलाइन करके वहाँ खेलना है, अपना बेस्ट देना है. तो उसको अपने आप को कंडीशन करना, उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा, उसको बॉल दिख रही है, बैट दिख रहा है. मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. सेम इज द केस. आप गाड़ी चला रहे हो, फॉग में चला रहे हो, साथ वाले पैसेंजर आंखें खोल खोल के देख रहे थे, मारेगा तो नहीं. आपको खुद पता है कि मैंने सेफली चलाना है. तो भैया सही बात बोल रहा हूँ. जैसे वो 2 बहुत अच्छे बच्चों ने बोला कि मैं प्रेशर में पढ़ती हूँ, लेकिन मैंने उनको एक बोला कि 10 दिन पहले अगर एग्जाम में आप इजी गोइंग हो तो आप प्रीपोन कर लो. अगर आपका 10 फरवरी को पेपर है और आपने फर्स्ट को ही, सेकंड को ही 10 मान लेना है, तो आप डेली उसको उस स्पिरिट से करोगे तो आपका परफॉर्मेंस और बेटर आ जाएगा. दिस इज वंडरफुल. यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर मी आल्सो. So like you said to Shaurya that we have to talk by ourselves. I always do that. I talk to myself rather than joining other students. Do you find the best friend in you? Yes sir, obviously. So whatever I am sharing here, so many practical things as a student. I have. How do you like the session? So I loved it. Huh? Sir, I loved it. Thank you very much. Thank you. Thank you, Shiv.
मीन्स मेरे जो सेशंस होते हैं उसका कंटेंट वही बनता है आके। क्यों? अगर हम ऑनेस्टली कोई चीज डेवलप करते हैं तो बनती है। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आई थिंक आपका ट्रांसपोर्ट भी वेट कर रहा होगा, है ना मैम? आई सो ऑलमोस्ट ओवर नाउ। मैं एक बार सभी बच्चों को फाइनली, यस कम हियर, यू टू कम अखिलेश कम हियर। गुरुजी ये पकड़िए। Good afternoon, sir. My name is Akhilesh Thakur and I am from grade 9. अखिलेश यादव Thakur. अच्छा, मैंने कहा वो यूपी वाला। I am from grade 9. My question is जैसे हम कभी भैया सुन लीजिए, अखिलेश जी ये पार्लियामेंट थोड़ी है, आप योगी जी के बंदे हैं इसका मतलब। जी भैया बोलिए। हम जैसे इंग्लिश का फिर हिंदी का पेपर देते हैं तो उसमें कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो हमें वो पहले करने चाहिए फिर बाद में करने चाहिए? क्योंकि ज्यादातर उन्हीं की वजह से मतलब हमारा एग्जाम छूट जाता है। भैया जब आपको पता है कि उसकी वजह से एग्जाम छूट जाता है तो पहले कर लेनी चाहिए। वो भी ज्यादा मार्क्स करते हैं ना। हाँ वो तो सेव है भैया, वो तो कटना है, चाहे छुरी पे गिरे या छुरी सेब पे गिरे। देखो एक चीज बताऊं आपको, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो आप सब लोगों को ये फीलिंग होती है कि आपको कुछ नहीं आता। ये उस बच्चे की निशानी है जिसकी तैयारी बड़ी सॉलिड है, और जिसने कोई पढ़ाई नहीं की हुई वो मस्ती में जाएगा, उसको पता है भी रिजल्ट क्या है। फॉलो? तो इसलिए मेरे बच्चों, आप लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कम आउट, आप लोगों में फीलिंग ऑफ, आप भी आ जाइए, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप लोगों में, पकड़े से इधर खड़े हो, आप लोगों में सभी बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है। आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। अब्दुल कलाम को हम अपना रोल मॉडल मान सकते हैं पर हम अब्दुल कलाम नहीं बन सकते। हो सकता है हम डॉक्टर अब्दुल कलाम से भी बेटर हो। एज एन इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम अपना रोल मॉडल मान सकते हैं, हो सकता है हम उनसे बेटर इकोनॉमिस्ट बन जाएं। एज ए रोल मॉडल नितिन गडकरी को हम अपना रोल मॉडल मान सकते हैं एज ए मिनिस्टर, हो सकता है हम उससे बेटर हो जाएं। एस जे शंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको हम रोल मॉडल मान सकते हैं, लेकिन हो सकता है हम उनसे बेटर फॉरेन मिनिस्टर बन जाएं, आईएएस बन जाएं, आईएफएस बन जाएं। आप किसी को फॉलो तो करो, लेकिन उस जैसा बन सकते हो, लेकिन वो कैसे बना वो आपका ट्रैक नहीं हो सकता, वो उसका ट्रैक। अब उस ट्रैक को अगर कोई भी फॉलो करेगा फिर तो कोई भी बन गया। वो एक बेंचमार्क है, उन्होंने कैसे उसको अचीव किया। अब मैं जगह जगह स्कूल जाता हूं, बच्चों को मिलता हूं, गवर्नमेंट स्कूल में भी जाता हूं, प्राइवेट में भी जाता हूं, टीचर्स को मिलता हूं। जितना मैंने ट्रेवल करके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान में स्टार्ट करने वाला हूं, तो जितना मैंने सीखा, सबसे बेस्ट चीज मुझे क्या लगी कि बच्चे बहुत दिल से जुड़े, मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बोलते हैं सर मुझे ये टॉपिक करवा दो। मैं बच्चों को बोलता हूँ ठीक है यार, मैं आपको ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। कई बार बच्चे बोलते हैं सर आप ना, हमारे एरिया बड़ा रिमोट है तो उसमें नेट नहीं चलता प्रॉपरली। डियर प्राइम मिनिस्टर थोड़ा इस पे काम कीजिए, 5G हर जगह होना चाहिए, राइट। तो मैं गवर्नमेंट को भी बोलता हूँ, और हमारा देश इतना अच्छा है, यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी बहुत अच्छी है और सस्ती है। एंड दुर्भाग्य यह है कि हमारा यहाँ इंटरनेट का डाटा सोशल मीडिया पे, ऑब्सीन साइट्स पे ज़्यादा खर्च होता है, पढ़ाई पे कम। तो आप उसको यूजफुली यूज़ कीजिए। एंड एट द लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा, किसी बच्चे को साइंस में 10th तक मैं इच्छाधारी टीचर हूँ, फिजिक्स भी जानता हूँ, केमिस्ट्री भी जानता हूँ, मैथ्स भी जानता हूँ, मैंने डिस्प्ले भी करके दिखाया बायो को छोड़ के।
आपको कोई भी डाउट हो, विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल, नाम फिजिक्स का है लेकिन मैं मैथ्स भी डाल दूंगा, आप मुझे उसमें बोल सकते हो, यहाँ नंबर लिखा हुआ है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर मुझे ये डाउट्स हैं, या मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा या लाइव कर दूंगा, ठीक। गूगल मीट, जूम के बजाय मैं लाइव कर दूंगा, जो कहीं से भी देख सकते हैं। अगर आप सभी लोग बोलते हैं हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज करना, वो किसी को कुछ मेंटोरशिप चाहिए, वो आई एम ऑलवेज विद यू। विपिन सर इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, विद द स्टूडेंट्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रीन एप्पल। हर बच्चा मेरे लिए स्पेशल है। आपका कोई भी रिश्तेदार, कोई भी जानकार जो महंगी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे से कनेक्ट करवा दो, फ्री दूंगा। फ्री का कोई एहसान नहीं है, ठीक है, जितना मैं अफोर्ड कर सकता हूं, ठीक। तो हाउ वाज द सेशन? सर जैसे कि इन्होंने बोला था कि इनको शॉर्ट नोट से समझ में ज़्यादा आता है। सर मैं लॉन्ग नोट से मेरे को ज़्यादा समझ में आता है, मैं वो प्रेफर करती हूँ। अभी मैंने कुछ बोला कि हम अब्दुल कलाम को बेंचमार्क मानेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेंचमार्क मानेंगे एजुकेशन में, एस जे शंकर को मानेंगे, लेकिन हम उनके ट्रैक को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उनका ट्रैक उन्होंने खुद बनाया, हम अपना ट्रैक खुद बनाएंगे। तो ये भी तुम्हारा वन ऑफ द ट्रैक्स है, बस, ठीक है। तुम मुझसे खुश हो तो रिजल्ट अच्छे आ रहे तो ठीक है। सो फाइनली शिवानी wants to wind up the session by saying something. Yes, शिवानी, come. सर आई एम शिवानी। क्या नाम है? शिवानी भी आप हो, आप और दोनों वाइंड अप करो, आ जाओ। ठीक है मैम, कर दे वाइंड अप ना। यस। Sharda ma'am, Vipin sir, it's a humble request. Time is over. Thank you. God bless you. Yes, please, fine. Sir, I noticed one thing that what's common in me, that's common in you also. Thank you. Thank you. So like in previous session, you said that you watch phone and you also study in washroom. Yes. So I also do that. Thank you very much, students. Thank you.